Hello. Yes, hello. Good afternoon to all of you. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? So this is your second lab regarding microprocessor and microcontroller. That is, the paper code is KP552, which is already told all of you. So now in this, so now I think most of you have been connected. So one more thing I want to tell you that in this lab actually you need to install a simulator tool basically, which is provided by the EKTU on the link available. Clear? So the simulator version 2 as well as the Java, clear, both should get installed into the system so to operate the programming. Clear? So I'm just showing you how you can access the link, and just wait, I'm just showing you again, which I have already told you last time. Again I am showing you this way. So this is the link exactly which is provided. Clear? If you go to the link, and you will land to the page where you got the few of the experiments exactly that covered in your syllabus, that will be taken by what virtual lab activity. Clear? So not all, but few of the experiment you will get from starting for 3 to 4 experiment you will be covered by this link exactly. Clear? Where the virtual lab activity is there. The simulation page you will show. Clear? And also there is a simulator app as well as uh, the link that is provided. So if you download that particular link, you will get the respective editor software. Clear? So I'm just clicking on this particular lab, and I will access to the page which belong to this link. Just wait, it is opening. Just wait, it is opening, and then I will show you. Am I audible properly to all of you? Yes, Is there sir. any issue? Okay. One more thing I want to tell you, you all those who are connected with me for EC53, you all when the four term will be completed. Clear? So the Viva will also be taken by individual persons. So during the lab, so you all need to be prepared for that. Schedule may be sent to you. Clear? आप लोग को भेजा जाएगा schedule, and those who will not connect during that particular time, they will be marked as absent also. So during the lab, you need to be connected as well as you need to be communicated with me also. Clear? So ऐसा ना हो कि मैं किसी को I am just calling someone and nobody is responding. So in that particular case, the problem will happen. Clear? I think you all are getting my point.
Hello, all of you are getting my point, what I am saying? Yes, sir. Yes. Okay, so ऐसा ना हो कि कोई person connected and that is not responding. If some ask questions, I am asking to taking the name of someone and he is not responding, then the problem will be created. So make sure that your presence will be in the that particular lab duration is important here. So you should make sure that. So I'm just sharing. अब जैसे मैंने link पे click किया है, so I'm just showing you what page it is opening exactly. So the page is opening like this. Clear? ये सभी को visible हो रहा होगा. When I have access to the link is also provided on the AKTU syllabus page. If you go to the syllabus of the AKTU regarding this microprocessor and microcontroller lab, then you will got the link over there. Clear? If someone have any issue, I will provide them by sharing on the Google Classroom as well, latest by today or tomorrow. Yeah. So, so if you click on this particular link that is belong to the 8085 microprocessor, that is the addition of two 8-bit number or 16-bit number with carry and without carry. So I am just clicking on this experiment. So you will land to this page exactly there, which we have discussed last time. Some points we have covered regarding 8085. Clear? So this is the aim or objective of the this particular lab. Clear? The first experiment. Now suppose if we go to the introduction page, clear? If we go to the introduction, you will got the information of regarding 8085 microprocessor. So these are some information regarding 8085 microprocessor. Clear? The basic info of this, like it is exactly the signals of 8085 is classified in 6 groups: address bus, data bus, control and signals, status signal, power signal, and frequency signal. Then externally initiated signal, then serial input output ports, and some operations performed by exactly it stores the 8-bit of data. So it is the major difference between 80 and 8086 and 8085. 8085 आपका 8-bit डेटा को स्टोर करता है, 8086 16-bit डेटा के लिए बना हुआ है. ठीक है, तो इट स्टोर 8085 आपका 8-bit डेटा स्टोर करता है. ये आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. ठीक है, इट checks the condition for this operation exactly, test for the conditions also, and sequence the execution of instructions. Also store data temporarily during execution in the defined read-write memory location called the stack. Clear? So steps involved to fetch a byte in 8085. What are the steps involved to fetch a byte in the 8085? So PC places the 16-bit memory address on the address bus. ठीक है, सबसे पहले क्या करता है प्रोग्राम काउंटर 16-बिट मेमोरी एड्रेस को एड्रेस बस पे प्लेस करता है. ठीक है, जो भी आपका 16-बिट का मेमोरी एड्रेस है उसको एड्रेस बस पे डाल देगा. Then the control unit send the control signal, that is read signal, to enable the memory chip. Then the byte from the memory located is placed on the data bus. Clear? जो byte हम लोग की इस पे located थी वो अब data bus की तरफ जाएगी. Now the byte is placed in the instruction decoder on the microprocessor and the task is carried out accordingly. ठीक है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, चाहे वो ऐड का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का, अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, whatever is given, accordingly the output will be there. Clear? It has 5 interrupt signal also. Interrupt basically दो तरह के, hardware and software. So these are some hardware interrupts in the 8085, that is 4 hardware interrupts are there. So these are hardware interrupts. Interrupt RST 7.5, 6.5, 5.5, and trap, in which the trap is the highest priority interrupt, hardware interrupt. Clear?
some software interrupts are also there, like RST0, RST1, RST0 to 7 is software interrupt. Clear? उसके बाद आपका जो है सिम 7 मशीन साइकिल्स भी है, जिसमें आपका कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इंटरप्ट एक्नॉलेज, बस आइडल कंडीशन। क्लियर? सब इंस्ट्रक्शंस आपके हैं जो डिवाइड होते हैं 5 कैटेगरीज में। जैसे डेटा ट्रांसफर है, इसके लिए मूव कमांड यूज करते हैं, एमओवी मूव। ठीक है? अरिथमेटिक एडिशन है तो उसके लिए ऐड कमांड यूज करते हैं। लॉजिकल है तो XRI कमांड यूज करते हैं। ब्रांचिंग है तो JNJ का जेट कमांड यूज करते हैं। मशीन कंट्रोल है तो HLT, NOP कमांड। तो ये सारी कमांड्स हैं, कुछ आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शन जो है ग्रुप इंस्ट्रक्शन सेट इज ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। जैसे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो मूव कमांड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। 2 बाइट के लिए तो MVI यूज करते हैं। 3 बाइट के लिए JMP यूज करते हैं। ठीक है? नाउ कुछ आपकी एड्रेसिंग मोड्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, implicit एड्रेसिंग. These all are belong to what? The 8085 microprocessor. Now this is the pin diagram of this particular microprocessor that is belong to the 40 pin structure. Here, starting from this one position to going to the 40th position. In this particular pin diagram, you can see all the signals are carried out. जैसे आपके हो गए SOD, SID, that is serial output data, serial input data. Clear? Then if you see trap is also there. Trap, these are some hardware interrupt जो सारे एक साथ आ रहे हैं. फिर interrupt request and interrupt acknowledgement. INTR is the interrupt request, INTA is the interrupt acknowledge signal. फिर आपकी एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स सिग्नल है. क्लियर? AD0, AD1, AD2, इसको हम लोग LSB सिग्नल्स भी कहते हैं या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स भी कहते हैं. क्लियर? इसके बाद लास्ट में आपका एक ग्राउंडेड है. फिर आपका A8 से लेके A15 तक है, इसको हम हायर ऑर्डर बिट्स कहते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस एड्रेस बस कहते हैं. क्लियर? फिर आपका S0 है, ये स्टेटस सिग्नल है, S0 S1. फिर आपका एड्रेस लैच इनेबल है, रीड राइट मेमोरी रीड राइट सिग्नल्स हैं. फिर इनपुट आउटपुट आउटलिंक मेमोरी बार सिग्नल है. फिर अगेन clock है, then hold and HLDA, hold signal and HLDA means hold acknowledgement. Clear? Then VCC that is supply है जो 5+5 volt की दे रहे हैं हम लोग. This is the hardware, this is the architecture of the 8085 microprocessor. How can we achieve the addition of two numbers? Anything you can perform in this architecture, addition, subtraction, whatever 8085 can do. Clear? तो इसमें जो भी 8085 कर सकता है वो सब इस आर्किटेक्चर के थ्रू आप परफॉर्म करा सकते हैं. तो दिस इज द आर्किटेक्चर व्हिच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ द एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड टू दिस. क्लियर? all of you are getting my points. Is there any issue regarding No, sir. any type of understanding with me? Then you can communicate to me. Any issue is there? So if you also have any query, if you want to ask something to me, then during the interaction you can ask. Clear? अभी जो मैं बोल रहा हूँ ड्यूरेशन में आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, because you all are studying this subject in this semester. Am I right? You all are studying this subject now. Hello. So you all are studying this subject in this semester. Am I right? Yes, sir. Okay, so that's why I'm saying कि you all can ask any question anytime. आप लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, so आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी से बेस आपकी प्रोग्रामिंग है. ठीक है? तो इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं है कि यू कांट डू. आप ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर सकते हो, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि
some programmings are there that you need to be focus upon that. Clear? So ये आपके कुछ सबसे पहले मेन चीज है, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो यू नीड टू गो टू द डेप्थ ऑफ दैट। क्लियर? आपको उस पर्टिकुलर, जैसे 8085 के बारे में हम कुछ काम कर रहे हैं तो यू नीड टू गो टू द 8085 डेप्थ। क्लियर? आपको उसके बेसिक फंडामेंटल, डेप्थ से भी पहले आपको उसके बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए, ये क्या है, ये कैसे परफॉर्म करेगा, व्हाट आर द स्टेप्स बिहाइंड दैट, देन हम आगे बढ़ पाएंगे। If you are not aware with the steps involved into the programming, या आपके जो आप काम करने जा रहे हैं, you are not aware with the path through how we can reach to that particular destination, तो आपके लिए वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। Clear? So this is what you can see. This is the architecture. This exactly tells how you can perform the operation using 8085 microprocessor. Clear? So the right hand blocks are exactly connecting the general purpose register here. So if I click on this, I can something else. So this is, you can see, this is the general purpose register having stack pointer, program counter, increment, object, decrement, address slash. Clear? Then if you see, there is a what, the serial input output controller, that is SID and SOD blocks are there, signals are there. Clear? Then we are having what, hardware interrupts, you can see on this line. Clear? These are what, the request type signals which affect the system, and this is the interrupt acknowledgement. Acknowledgement is what, the output exactly taken by the डेस्टिनेशन और रिसीवर। तो जो भी इनका स्टेट, जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब हैंडल हो जाएंगी तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है ना? इट इज नाउ इट इज रिजॉल्व्ड या इट इज नॉट रिजॉल्व्ड, व्हाटएवर इज दैट। तो जब प्रोसेसर उसको रिजॉल्व कर देगा, यू विल गेट द एक्नॉलेजमेंट। दैट्स व्हाई द एरो इज आउटवर्ड। क्लियर? एंड दीज ऑल आर द इनवर्ड एरो। नाउ दिस इज इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों में। अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर में कोई ना कोई इंटरप्ट सिग्नल आपका प्रोड्यूस होगा, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है? इंटरप्ट जैसे कोई टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है, कोई करंट टास्क, और कोई उस पे इंटरप्ट सिग्नल आ जाता है उस टास्क के ड्यूरेशन में, तो उसको इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है? जैसे आप कोई टास्क या कोई काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई डिस्टर्ब कर दे किसी और पर्पज से, तो आपके लिए वो इंटरप्ट हो गया। ठीक है ना? वैसे ही सिस्टम को भी इंटरप्ट्स रिसीव होते रहते हैं, जैसे पॉपअप्स होते हैं ना, पॉपअप्स डिस्प्ले होते हैं सिस्टम पे। आप लोग जब कोई भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो अचानक क्या आता है, कभी कभी देखिए पॉपअप डिस्प्ले होने लगता है, कुछ और चीजें आपको शो होने लगती है। तो दैट आर व्हाट, दैट आर समथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है? अगर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो हार्डवेयर का पॉपअप शो करेगा, हार्डवेयर में इशू दिखाएगा। ठीक है ना? हार्डवेयर इशू जैसे आपका, मान लीजिए हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में सपोज बैटरी से रिलेटेड कोई इशू है, तो इट विल शो यू द बैटरी पॉपअप। ये बैटरी का इंडिकेशन आएगा कि बैटरी आपकी इस हार्डवेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चार्जिंग से, चार्जर से रिलेटेड है तो चार्जिंग का इशू दिखाएगा। ठीक है? मदरबोर्ड से रिलेटेड है तो मदरबोर्ड का इशू दिखाएगा। बट अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो वो प्रोग्रामिंग का पार्ट आपको शो करेगा। ठीक है? वो एप्लीकेशन दिखाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है? तो दिस इज व्हाट, अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। नाउ दिस इज द 8-bit इंटरनल बस। वी आर हैविंग फ्लैग रजिस्टर आल्सो। फ्लैग एग्जैक्टली क्या करता है? फ्लैग रजिस्टर इज एग्जैक्टली ए टाइप ऑफ स्टेटस रजिस्टर, एक तरह से कह सकते हैं। ये सिस्टम के स्टेटस को चेक करता है। ठीक है? ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर सिस्टम में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कैरी आया, तो कैरी फ्लैग इसमें जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। 5 फ्लैग रजिस्टर एग्जैक्टली यूज होते हैं। रजिस्टर इज आल्सो टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है? इट इज आल्सो ए रजिस्टर विद मेमोरी। ठीक है? जहाँ पे जो भी ऑपरेशन ओरिएंटेड वर्क है उससे रिलेटेड, जब ऑपरेशन हो रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में जो भी हमारा कुछ इंडिकेशंस आते हैं वो हमारा फ्लैग रजिस्टर के पास स्टोर होते हैं। जैसे आपका एक तरह से कह सकते हैं, जैसे भी कैरी है, कैरी फ्लैग आपका बंद हो जाएगा अगर कोई कैरी एग्जिस्ट होता है।
ठीक है, कैरी नहीं आता है तो सेट टू 0 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका साइन फ्लैग है, 0 फ्लैग है, ठीक है, और जल्दी कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, अगर पैरिटी क्रिएट होती है, पैरिटी ऐड होती है तो पैरिटी फ्लैग जनरेट हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 0, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, और लास्ट में आपका मतलब टोटल मिला के आपके 5 फ्लैग होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 8085 में। इसके बाद आपके टेम्परेरी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है। Accumulator is having the bidirectional signal to the 8-bit internal bus, and it is also connected with the ALU. Clear? Temporary register is also a unidirectional signal with the 8-bit internal bus, and it is connected with the ALU. So exactly क्या हो रहा है कि जो हमारा जैसे दो डेटा में ऐड करना है A प्लस बी, ए आपका सपोज एक्यूमुलेटर है, बी टेम्परेरी रजिस्टर में, और ए और बी का डेटा जब आपका आएगा यहाँ से दोनों मेमोरी लोकेशन से आके कहाँ जाएगा एएलयू में, तो एएलयू को इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना है। यू आर गिविंग द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर, सो इट विल जस्ट ऐड दीस टू नंबर एंड द रिजल्ट विल गेट अगेन to this internal bus, 8-bit internal bus, and the if suppose during the addition you are getting some carry, तो कैरी फ्लैग जो फ्लैग रजिस्टर उसमें जो कैरी वाला फ्लैग है वो आपका सेट टू 1 हो जाएगा। अगर कोई आपका कैरी नहीं आता है तो फ्लैग रजिस्टर में कैरी फ्लैग 0 रहेगा, ठीक है। जैसे एडिशन में कभी कई बार कैरी आ जाता है, कई बार नहीं आता है, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, फिर 8-bit इंटरनल बस से होते हुए अगेन इट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, इसीलिए एक्यूमुलेटर बाई डायरेक्शनल है। इट कम्युनिकेट टू द डाउनवर्ड एज वेल एज इट इज टेकन, मतलब ये 8-bit इंटरनल बस से डेटा दे भी सकता है, उससे ले भी सकता है, ठीक है। तो इट कैन टेक द रिजल्ट फ्रॉम द 8-bit डेटा, और जब इसको चाहिए होगा, जब इसमें स्टार्टिंग में डेटा स्टोर हो रहा होगा, तो it will take the data from the 8-bit internal bus. Also, it can communicate the data to the internal. Then timing and control signals are there, which exactly having again clock, read, write, ALE, S0, S1, input output memory, hold acknowledgement, reset in, reset out. Clear? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? So this is what about the architecture of the 8085 microprocessor. I think ये सभी को clear हो रहा है? Yes, sir. अभी मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक बार दोबारा, जिससे ओवरव्यू देने से क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका ज्यादातर प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक है। तो आपको ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज मैं डायरेक्टली जंप करूंगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। थोड़ा 8085 का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे इसका क्या है, that is important to this. Yeah, so these are some theory portion. If you see, if you click on any one of the topic, you will directly go to the access page. Clear? आप सीधे access page की तरफ आ जाएंगे. So this is the type of system. So these are some theory regarding this programming portion also. This is covering your programming also. Some instructions are there, so you need to learn these instructions. अगर आपको instructions याद भी रखने पड़ेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो जरूर आपको याद रखने हैं, जैसे LXI हो गया, इसका मतलब भी ब्रैकेट में लिखा हुआ लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, ठीक है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। फिर है LH LD एड्रेस, इसको बोलते हैं लोड HL पेयर डायरेक्ट, ठीक है। फिर मूव A, मूव mth डेटा टू एक्यूमुलेटर, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, M का डेटा उसको A में मूव करा देना, ठीक है। तो A आपका खाली हो जाएगा, नहीं M खाली हो जाएगा, ठीक है। MVI का क्या मतलब है, मूव इमीडिएट डेटा, ठीक है, मूव इमीडिएट डेटा। DAD का क्या मतलब है, डबल एडिशन, डबल दो बार एडिशन करना है तो दिस इज कॉल्ड डबल एडिशन, ठीक है। JNC क्या है, दिस इज अगेन एड्रेस। Then INR is increment register, INX is increment register pair,
ठीक है। तो ये सारे कमांड है, ऐड एसटी एड्रेस, एसएचएलडी एड्रेस, ठीक है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लो डायग्राम है, यू कैन सी दिस इज द फ्लो डायग्राम, हाउ वी कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे ये परफॉर्म होगा। So if you go to the simulation page, clear, if you go to the simulation page again, okay, now if you talk about the procedure, I am just showing you the procedure. Okay, so if you see the procedure of this, so there यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, click on 8085 simulator version. All of you are getting this point? So zoom करके देखिएगा, थोड़ा zoom करके दिखाऊं, trying to ये आपको दिख रहा है सभी को? Click on the 8085 simulator version 2. Is it visible to all of you? ये सभी को दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो ये आपका सिमुलेटर है, दिस इज द 8085 सिमुलेटर वर्जन 2। तो इसमें आपको ये दोनों देखे लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर एंड जावा डाउनलोड टू इंस्टॉल इट। तो ये आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके देखना है, ठीक है। यू नीड टू गेट डाउनलोड करके देखिएगा, इंस्टॉल करके देखिएगा, फिर आपको देखिए क्या इसमें इंटरफेस खुलता है, ठीक है। So the interface should be like this, clear? दिखा देते हैं, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें एक सिमुलेटर का पेज है, एक एडिटर का पेज है, दूसरा सिमुलेटर का पेज है। दिस इज व्हाट 8085 सिमुलेटर, ठीक है। दो तरह से विंडो खुलेगी, दिस वन लेफ्ट इज द एडिटर एंड राइट वन इज द सिमुलेशन, क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या करना है, राइट द प्रोग्राम कोड। आपको पहले प्रोग्राम कोड लिखना है, दिस इज वेरी सिंपल, एज सच कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो देखिए जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है, वी विल राइट द प्रोग्राम, जस्ट वेट, ओके। सो प्रोसीजर इज व्हाट, राइट द प्रोग्राम कोड ऑन एडिटर फाइल विंडो, ठीक है। इज इट क्लियर? सो आपको पहले क्या करना है, प्रोग्राम कोड लिखना है एडिटर फाइल विंडो पे, फिर स्टोर सम इनपुट डेटा एट स्पेसिफाइड मेमोरी एरे, ठीक है। उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर सम इनपुट डेटा एट स्पेसिफाइड मेमोरी एरे, उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे, ठीक है, डेटा को। then click on the options available or click on the option assembly for the assemble for simulation। तो ये सारे स्टेप्स हैं कैसे कैसे आपको करना है। पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे एडिटर फाइल विंडो पे, फिर स्टोर करेंगे सम इनपुट डेटा एट स्पेसिफाइड मेमोरी एरे, then click on the options available for the simulation, then write the starting address to the programming to simulate options, clear। then simulate of entire code could be run at a time or step by step। ये आपको शो करेगा कि आपको पूरा प्रोग्राम एक बार में रन करना है या स्टेप बाय स्टेप करना है, क्लियर। उसके बाद आपको इसमें जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको वन वन लाइन आपको ये प्रोग्राम जो है रन करता हुआ दिखेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अगर आप पूरा कंप्लीट वन बार में कर देंगे तो फिर लाइन बाय लाइन रन नहीं करे, एक बार में रन कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूशन रिजल्ट कैन बी चेक थ्रू द रजिस्टर कॉमा मेमोरी एंड डिवाइस एनवायरनमेंट विंडो, then note down update registers and memory content value for verification of result, then for instruction minimax details click the help option, clear। So if I go on the bottom of this page, you can see ये सभी को दिख रहा है, ये पेज सभी को दिख रहा है, ये पेज सभी को दिख रहा है। Yes, sir. तो ये वीडियो जरा देख
देखिए आप, इसमें आपको बताएगा कैसे प्रोग्रामिंग करके हम एडिटर पेज पे कैसे, यहाँ जो लेफ्ट वाला ब्लैंक पेज है इस पे हम लोग प्रोग्रामिंग टाइप करते हैं, फिर यहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको, यहाँ से नीचे दो बटन दिख रहे होंगे आपको, इसको हम क्लिक करते हुए राइट वाले बटन को फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, असेंबल का भी ऑप्शन आता है, असेंबल करते हैं, फिर लास्ट में रन का ऑप्शन आएगा, उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इसको आप सुनिए। Welcome to 8085 Zubin Simulator. This window consists ऑडियो आ रही है? one is editor window Yes, sir. and the second is output window. You write the program at editor window and assemble it. Then you can check the output at output window. The output may be stored at various locations and you can check it under the register tab for the accumulator, general purpose registers and current location. You can also check that same output according to memory address and its value. If you have connected your device to any other interfacing device, you can check the output at devices. Coming back to the editor window, suppose I want to perform addition of two 8-bit numbers. Then I will copy the code from the addition of two numbers under the heading code and result and will paste the same in the assembler. This program says that your program starts from address 7000H. You are taking the first input at 7501, the second input at 7502, and the output is generated at 7503. The two input you are taking are 12 and 13. Now I am going to assemble this program. This program is giving me two options to assemble it. One, run all at a time, and the second is step by step. For your better understanding, I will perform step by step assembly. For this, change the starting address to 7000 as per your program and click on step by step. Go back to the register window in the output and click on forward. You can see a marker here which is highlighting the first line. That means currently you are executing the first line. According to this, your first input should come at location 7501 and you can see 12 at this location. Again press forward. It will move you to the accumulator. That means your value has been moved to the accumulator. Again say forward. Now you are coming to the next memory location, which is 7502. According to your program, this is the location where your second input will come. So you can again say forward. Now this is the command to add the content of accumulator and memory location and store the result at accumulator. So you can see the output which is 25, 12 plus 13 at accumulator. Again say forward. Here you are going to the location 7503. This is the location where you want your result to be stored. Then say forward. This command will move the content of accumulator into the current memory location. That means you can finally say that you have attained the output at 7503, which is 25. Go to the last line, which is RST1. This is used to terminate your program. You have successfully generated the output of addition of two 8-bit numbers and the result is 25. You can stop here. कुछ समझ में आया आपको कोई? Hello? All of you have understand some concept with this video and how we can perform the addition of two numbers using this exactly the simulation tool. कुछ समझ में आया आप लोग को? हेलो, Rishu Agrawal is there? Hello, Rishu Agrawal.
हेलो, रेशु अग्रवाल नहीं है? फिर देखिए इसमें क्या है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. देखिए मैं एक बार आपको वीडियो तो दिख रहा होगा ना, वीडियो की वॉइस आ रही थी? Yes, sir. अच्छा, तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, मैं थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए आपका ये जो दो पेज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, यही एग्जैक्टली आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट है। क्लियर? इसमें आप देख सकते हैं तो जो आपका कह सकते हैं जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये एडिटर पेज है, और राइट साइड वाला पोर्शन आपका रजिस्टर मेमोरी या डिवाइस जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका सिमुलेटर पेज है। क्लियर? तो जो भी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग आपने कॉपी किया यहाँ पे, एडिटर वाले पेज पे आप प्रोग्रामिंग को पेस्ट कर दीजिए, जो बाएं वाला पेज है। ठीक है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इस वाले पेज पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो राइट साइड वाला पेज है इस पे आप का जो है रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे रजिस्टर विंडो है तो रजिस्टर में जितने भी रजिस्टर्स हैं, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी जनरल पर्पज रजिस्टर जो भी हैं, या टेम्परेरी रजिस्टर हैं, या फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको सारे रजिस्टर्स अपडेट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा तो हम रजिस्टर में ही रख रहे हैं ना, दो डेटा उसको रजिस्टर में रख रहे हैं ऐड करने के लिए, फिर उसको हम फाइनली जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी एक बट कहीं रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। तो एग्जैक्टली जो हमारा डेटा है वो रजिस्टर्स में ही स्टोर हो रहा है। तो रजिस्टर में आप डेटा की एंट्री चेक कर सकते हैं, जो डेटा आपने लिया है और जो आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मेमोरी है। मेमोरी में आप लोग मेमोरी लोकेशंस पे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो चेक कर सकते हैं। फिर डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में आप लोग अगर मान लीजिए इसको आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो यू कैन चेक द आउटपुट ऑन द पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे एक साइड में। बाकी ये जो लेफ्ट पोर्शन है यही आपका मेन एडिटर विंडो है। रिजल्ट आपका राइट वाले साइड पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, रजिस्टर वाले में आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास जैसे मान लीजिए दो मेमोरी, दो एड्रेस लोकेशन है, एक मान लीजिए 7501 है, दूसरा 7502 है। तो दो एड्रेस पे हमने क्या किया, डेटा को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, वी आर हैविंग द टू डेटा जिसको हमें ऐड करना है, तो उसके लिए दो लोकेशन चाहिए। तो एक लोकेशन 7501, एक लोकेशन सपोज 7502 है। ठीक है, एक हमारा एक्यूमुलेटर है और एक हमारा मेमोरी डेटा है, टेम्परेरी मेमोरी रजिस्टर। क्लियर? तो दोनों को हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। एग्जैक्टली पहले क्या होता है, पहले हम डेटा को एक्यूमुलेटर में डालते हैं, पहला जो डेटा डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर पे जब दूसरा डेटा डालना होता है तो एक्यूमुलेटर में जो पहला डेटा है उसको हटा के हम दूसरे लोकेशन पे डाल देते हैं, दूसरे मेमोरी एड्रेस पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे एक्यूमुलेटर खाली हो जाता है। फिर हम जो सेकंड डेटा है जिसको हमें ऐड करना पहले वाले डेटा से, उसको जब सेकंड डेटा को लाएंगे तो उसको एक्यूमुलेटर में हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाला एक्यूमुलेटर का डेटा था वो दूसरे लोकेशन पे जा चुका है। देन वी अप्लाई द ऐड कमांड। तो ऐड जैसे लिखा हमने ऐड एम, ऐड एम का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू ऐड द डेटा ऑफ द मेमोरी लोकेशन एम टू द एक्यूमुलेटर, को ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के डेटा से। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कमांड लगा दिया हमने। उसके बाद ऐड होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे। रिजल्ट हमारा कहाँ जाएगा, थर्ड मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, थर्ड एड्रेस पे स्टोर होगा। और इस तरह से क्या है, थर्ड मतलब कि एक तरह से एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है रिजल्ट। फिर अगर एक्यूमुलेटर से आप उसको किसी और प्लेस पे स्टोर कराना चाहते हैं, देन अगेन यू कैन मूव द डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू द नेक्स्ट प्लेस। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुछ प्रोग्रामिंग होती है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन द राइट साइड ऑफ द पेज, यू कैन चेक। तो आपको रिजल्ट सारा दिख रहा होगा यहाँ पे। इफ यू चेक द रिजल्ट, आई एम जस्ट जूमिंग, ट्राई टू जूम इट। So you can see, okay, so the page is displaying or not? पेज डिस्प्ले हो रहा है सभी को ये? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसमें आप देखिए जो राइट साइड में आपका आएगा एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर बी है, रजिस्टर सी है, रजिस्टर डी है,
ये सब क्या है, ये सब अपने आप को अपडेट करे। जैसे एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया वो फाइनली ऐड होने के बाद आ गया, जैसे 25 आया रिजल्ट, फिर 25 को हमने क्या किया, दूसरे मेमोरी लोकेशन में शिफ्ट करा दिया। जैसे मेमोरी एम है मान लीजिए, यहाँ नीचे देखिए ये डेटा आपका यहाँ पे फाइनली जाके स्टोर हो गया। लास्ट में हम लोग उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हाल्ट कमांड यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जब फाइनली आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो फ्लैग रजिस्टर आ रहा है, यू कैन सी दिस फ्लैग रजिस्टर, सभी को दिख रहा है ये प्रोग्राम? ये देखिए नो देयर इज अ सर, फ्लैग रजिस्टर, नहीं हाफ दिख रहा स्क्रीन है? दिख रही है सर। यस सर, आधी दिख रही है। अच्छा आधी दिख रही है, एक मिनट ये मैं शेयर करता हूँ। नाउ इट इज विजिबल। यस सर, यस सर। Okay, so you can see in the right window, clear, that is the simulator page, there is a flag register in the pink color. So flag register is exactly having what, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ सारे फ्लैग बिट्स जीरो है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 00 है। जैसे साइन फ्लैग जीरो है, जीरो फ्लैग जीरो है, ऑक्सिलरी कैरी जीरो है, पैरिटी फ्लैग जीरो है, कैरी फ्लैग जीरो है। क्योंकि कैरी कोई मिला नहीं ऐड करने पे, जब हमने दो नंबर को ऐड किया, जैसे 13 + 12 हमने ऐड किया, रिजल्ट क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो 25 आप देख सकते हैं कि कोई कैरी नहीं आया उसमें, ठीक है, तो कैरी नहीं आया इसलिए कैरी बिट आपकी जीरो रहेगी, कैरी फ्लैग कोई अपडेट नहीं आया, क्लियर। तो दिस इज एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ व्हाट, एडिशन प्रोसेस, क्लियर। These are stack pointer, memory pointer, program status bar, program counter, clock cycle converter, clear, counter। तो ये सारे आपके नीचे क्लॉक, देखिए जो मेमोरी पॉइंटर है एचएल पेयर पे जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो 7503 एड्रेस है, यहीं पे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका प्रोग्रामिंग का पेज है जहाँ पे रिजल्ट आपका स्टोर हो रहा है। कुछ आपके देखिए ट्रैप सिग्नल, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट है, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द हार्डवेयर इंटरप्ट। अब आप देख सकते हैं हार्डवेयर में भी SOD, SID, नो सीरियल आउटपुट डेटा, नो सीरियल इनपुट डेटा, नो इंटरप्ट सिग्नल, रिक्वेस्ट सिग्नल, नो ट्रैप सिग्नल, मतलब कोई भी हार्डवेयर इंटरप्ट नहीं आया सिस्टम में, तो इसलिए 000 दिखा रहा है, देयर इज नो हार्डवेयर इंटरप्ट, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये सिम इंस्ट्रक्शंस है, अनरीम इंस्ट्रक्शंस है, ये सब आपका देख सकते हैं। इस तरह से हमारा, और जो हम लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एक पॉइंट आ रहा है लेफ्ट साइड में, देखिए स्टार्ट फ्रॉम में हम लोग वो वाला पॉइंट मेमोरी एड्रेस चूज करते हैं जहां से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम हमारा किस एड्रेस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, 7000 से, तो पहला एड्रेस हमने 7000 यहाँ पे मेंशन करना है, तो वी हैव पुट 7000 Welcome to ओवर हियर फ्रॉम द स्टार्ट 808. ऑफ द, समझ में आ गया है सभी को? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगी इसमें? यस सर। हेलो, थोड़ा बहुत समझ में आया सभी को प्रोग्रामिंग के बारे में? So this is the procedure. Now if you go to the simulation oblique code result, you can see these are the simulation, these are the codes. If you see, देखिए यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग दी हुई है। पहले हमने लिया गेट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नंबर इन HL पेयर रजिस्टर, ठीक। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने कहा ना कि पहले जिस फर्स्ट नंबर जो है जिसको ऐड करा रहे हैं पहला नंबर, उसका एड्रेस लिया HL पेयर रजिस्टर में, उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया, मूव A, मतलब M वाले डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, HL पॉइंट्स द एड्रेस 75, अब ये सेकेंड वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा क्योंकि पहला वाला एड्रेस तो आपने एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। नाउ इट विल पॉइंट द सेकेंड एड्रेस दैट इज 7502, पहला वाला 7501 में एड्रेस था, इसको आपने एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया, अब 7502 को पॉइंट करेगा और उसको फिर जो है HL रजिस्टर में वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप ऐड एम कमांड देंगे तो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, जो पहला वाला डेटा एक्यूमुलेटर में था उसको एम वाले से ऐड करा देगा,
तो इट विल ऐड द सेकेंड नंबर विद द फर्स्ट नंबर, ठीक। देन HL पॉइंट्स टू 7503। इस 7503 क्या है, थर्ड मेमोरी लोकेशन है जहां पे वो रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक। तो रिजल्ट आपका वहीं स्टोर हो गया 7503 में। नाउ अब क्या करेगा, मूव M, A, मतलब अब उसको स्टोर करेगा रिजल्ट को 7503 में, मतलब एक्यूमुलेटर पोजीशन पे जो भी M का डेटा था उसका एक्यूमुलेटर पोजीशन पे स्टोर हो जाए। तो अब आपका देखिए RST1 आ गया लास्ट में। यू कैन टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 7501 था वो आपका क्या था, स्टोर इनपुट एट द एड्रेस। यहाँ पे आपने फाइनली उसको ओरिजिनल आपका एड्रेस था वहां पे स्टोर करा दिया लास्ट में, ठीक। इसके बाद get 2 8-bit numbers in successive locations, clear। so देखिए हमने आप यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं we have given the input 7501। एड्रेस पे जो इनपुट था वो 13S था। 7502 एड्रेस पे जो डेटा था वो 12S था। आउटपुट क्या आया, जब दोनों को ऐड किया 13 और 12 को, आउटपुट आया 25H, जिसको हमने थर्ड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया 7503 पे। तो फॉर दिस यू हैव द प्रोग्राम लाइक दिस। इसी के लिए प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। दिस इज अगेन फॉर द हेक्साडेसिमल एडिशन, यू कैन सी दिस इज अनदर प्रोग्रामिंग, यू कैन सी, ठीक है। So this is all about what, this is all about your procedure part, clear। समझ में आ गया सभी को थोड़ा बहुत? Now these are some post tests is there also, then some references are there। so this सर ये these all are, excuse me सर, हाँ हाँ सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे? हाँ किया जाएगा, बताइए कोई प्रॉब्लम तो देयर मतलब एनी? फिर से अगर देखना हो तो या बिल्कुल देख सकते हैं हम। वी विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ओके सर। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आपको यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग आल्सो, बट ड्यूरिंग द लैब इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क एट दैट टाइम। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अभी जो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक से आपको बताया, कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, ठीक है। एंड सिमुलेशन पेज और वो सारी एडिटर विंडो दिखाया, वीडियोस आपने देखे। तो कुछ आपको कोई डाउट है कुछ बेसिक्स में तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है इसमें एडिशन प्रोग्राम में, एडिशन वाले पोर्शन में? मैंने आपसे प्रोग्रामिंग भी डिस्कस किया है, तो किसी को कोई डाउट है? एडिशन करना सभी को आता होगा, 8085 में हेक्साडेसिमल एडिशन नंबर का तो आता ही होगा सभी को। जो हेक्साडेसिमल एडिशन करते हैं तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि चूंकि रेंज आपकी 15 तक रहती है, तो अगर नंबर 15 को एक्सीड करता है, हेक्साडेसिमल में नंबर जो है हमारा कहाँ तक जाता है, 15 तक जाता है, ठीक है। तो अगर वो नंबर 15 को एक्सीड कर जाता है ऐड करने पे, तो नंबर ऐड किया आपने, मान लीजिए आंसर 16 आ गया, तो आपको क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। ठीक है। उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, जो भी नंबर होगा, फिर यू विल गेट द रिजल्ट, क्लियर। सो इट शुड बी लेस देन 16, क्लियर। 15 तक हो सकता है, तो इट शुड बी लेस देन 16। if it is greater than that particular number, then you need to get divided। जो डिवाइड करने पे रिजल्ट आएगा, जैसे 16 को 16 से डिवाइड किया 1 0 आया, 16 = 16, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया, सो द नंबर विल बी 1 0, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपका वो नंबर 1 0 होगा, तो 0 आप लेंगे, 1 विल बी एक्टिंग एज ए कैरी। सो
अभी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? Okay, so I think we have the students list, so can I communicate? Okay, so Nida Jamal is there. Nida Jamal, Yes, sir. I'm taking the name of some students, those who are present right now. So I'm just asking their name. So kindly make sure your presence clear. Okay. इसके बाद मुर्तजा. Yes, Murtaza sir. is there. Okay, okay. Neelmani Rao. Yes, sir. Okay, Nitisha. Yes, sir. Ojaswika. Ojaswika is there. Ojaswika is there. Ojaswika. Okay. Ojaswika is not there. Okay, Praful Singhal. Present, sir. Om Mishra. Yes, sir. Pratna Khare is there. Okay, Rachita Srivastava is there. Rachita Srivastava and Prerna Shukla. Number 93. Present. The Prerna Shukla. Prerna Shukla, you have not marked your attendance. Sir, As well Prerna as Shukla Rachita. present. Present, the Prerna Shukla. Actually, you have not marked your attendance in this chat box. So we will discuss the next lab in the next experiment in the next lab. So thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.